تو اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ یہ مسلمانوں مزہ لینے کے لیے آتی ہے۔ آج لوگ جلسے میں آتے ہیں علماء اور شورا کے بیان اور نعتیہ کلام کو سننے کے لیے نہیں بلکہ جلسہ کو دیکھنے کے لیے۔ ہماری قوم نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ اس بالی ٹورا کی زمین پر آج جشن غوث الورا کا پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن یہ مسلمانوں علاقے سے بہت کم ہی لوگ آئے ہوں گے جو آج علماء کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ مگر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی بالی ٹولہ کے مسلمانوں نے اسی ممبر کو ہٹا کر اسی اسٹیج کو ہٹا کر علماء کو نہ بلا کر کسی ڈانسر کسی آوارہ لڑکی کے ناچ اور گانے کا پروگرام رکھا ہوتا تو اے مسلمانوں جہاں سے لے کر وہاں تک مسلمانوں کا مجمع دکھتا ہوا نظر آتا۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے اپنے وقار کی دھجیاں اسی طریقے سے اڑائی ہے، اپنی عزتوں کا جنازہ اسی طریقے سے نکالا ہے۔ آج جب بھارت کی زمین پر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، بھارت کی زمین پر ہمارے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے، کبھی مام لچی میں ہمیں مار دیا جاتا ہے، کبھی اے مسلمانوں ہمارے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے، تو بھارت کا مسلمان کہتا ہے نثار احمد نظامی آج بھارت کی زمین پر ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے، بھارت کی زمین پر ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نثار احمد نظامی ہمیں مسلم ہونے کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، داڑھی رکھنے کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، ٹوپی پہننے کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے۔ مگر میں اس بالی ٹولہ کی زمین سے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیتا ہو، بھارت کے مسلمانوں اگر آج تم ستائے جا رہے ہیں، اگر تم مارے جا رہے ہیں تو ٹوپی کی بنیاد پر نہیں، داڑھی کی بنیاد پر نہیں، مسلم ہونے کی بنیاد پر نہیں، اگر تم مارے جا رہے ہو تو اپنے گندے اعمال کی بنیاد پر مارے جا رہے ہو۔ جس دن تم پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نبی کی شریعت پر چلنا شروع کر دو گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی، تمہاری دنیا بھی سبرے گی، تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی ہے نا؟ ہاں بھیا اب نعرہ نہیں لگے گا، نہیں لگے گا۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو، آؤ میں آپ کو میسج دیتا ہوا چلو۔ آج ہماری قوم کے لوگوں نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے، اپنی عزتوں کا جنازہ کس انداز سے نکالا ہے۔ مسلمانوں جہاں پر تو خوشحال زندگی بسر کر رہے ہو نا، مگر کبھی اے مسلمانوں سوشل میڈیا پر فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی کو بھی اٹھا لو۔ حقیقت میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بمباری میں مار دیا جا رہا ہے، مسلمانوں نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری گھر کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم مسلمان بھارت کی زمین پر رہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دین کے بجائے 4 وقت کا کھانا دے رہا ہے۔ مسلمانوں تم بھارت کی زمین پر بنگال کی زمین پر رہ کر تم ایک دن میں 3 وقت کے بجائے 4 وقت کھانا اپنے آپ میں کھانے پر آمادہ ہو۔ کبھی فلسطین کے مسلمانوں پر بھی نظر ڈال دو کہ ہفتہ بیت جا رہا ہے، ٹھیک طریقے سے پانی بھی انہیں میسر نہیں ہو رہا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں گندے پانی پی کر اپنی زندگی کے ارکان کو پورا کر رہے ہیں، پھر بھی اے مسلمانوں ہماری طرح سے وہ بزدل نہیں ہے، ہماری طرح سے اپنی مسجدوں کو ویران نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر دیکھا کہ 3 بچوں کو جب ایمبولینس سے ہاسپٹل کی طرف لایا گیا نا، ہمارے جہاں کسی بچے پر کوئی ظلم ہو جائے تو لوگ اللہ و رسول کو بھی تانا دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مگر فلسطین کے ان مرد مجاہد کو دیکھو مسلمانوں، فلسطین کے ان بچوں کی زندگی کو دیکھو کہ جب ان بچوں کو ایمبولینس سے اتارا گیا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جائے تو بچے ہاسپٹل کے بجائے پہلے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں یہ فلسطین کے بچوں نے ہماری قوم کے لوگوں کو پیغام دیا کہ مسلمان تم پر کتنا بھی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے رب کائنات اسی مسلمان پر رحمتوں کی برسات۔ ماشاءاللہ اسی طریقے سے
नौजवानों को अल्लाह जज्बा अता करे, लेकिन मुसलमानों हालात का जायज़ा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लो। हम और आप यहाँ बैठ कर आज जलसा गाह में नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र सुन रहे हैं, उनके रूहानी बेटे सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से हम और आप माला माल हो रहे हैं। मगर ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के बच्चों की जिंदगी उठा कर देखो। आज हमारे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना तो हम तड़प जाते हैं, हम दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा हो जाते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक बाप को देखा, अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ले जा रहा था, तेजी से जा रहा था, डॉक्टरों को पुकार पुकार कर कह रहा था। मैंने कहा मुसलमान किस तरीके से डॉक्टर को पुकार रहा है, तो कह रहा था कारी साहब क्या आपको पता नहीं है मेरे बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे अपने आप में देखा ना जा रहा है। मैंने कहा मुसलमान आज तू अपने बच्चे के पेट के दर्द को लेकर इतना परेशान है, इतना परेशान है कि डॉक्टर को पुकार पुकार कर कह रहा है। जरा फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख, उसकी जिंदगी को देख। हकीकत में छोटे छोटे बच्चों को बमबारी में मारा जा रहा है। एक माँ को देखा गया ना, उसके बच्चे का पूरा धड़ हकीकत में अलग था, एक सर था जो उसकी गोद में था। मुसलमानों फिर भी माँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी रही, बल्कि रब का शुक्र अदा करती हुई नजर आ रही थी। हकीकत में मुसलमानों, हम और आप अगर फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम और आप अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुसलमानों इतना तो कर सकते हो कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की जो भी मस्जिदें वीरान है, उन मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके, अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में हाथों को उठाकर इतना तो कह सकते हो कि मौला मैंने जो तेरी बारगाह में सजदा किया है, उसी सजदे के सदक़े तुफैल में फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत कर दे, वहां के शोहदा के दर्जात को बुलंद कर दे। दावे के साथ कहता हो, जब रब की बारगाह में सजदा करके तुम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाकर तुम पर रहमतों की बरसात आता है। मोहतरम घबराने की जरूरत नहीं है। हकीकत में फिलिस्तीन में जो हकीकत मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मर्दाना जौहर अता किया हुआ है, रब्बे कायनात ने उनको ईमान की दौलत अता किया हुआ है। हकीकत में मुसलमानों, आज हमारी माँ बहन बेटी ना, ए मुसलमानों आज अपनी जिंदगी के वकार को इस तरीके से मजरू करती है, मार्केटों और बाजारों की बाकायदा बेपर्दगी के साथ जीनत बनती है। मगर फिलिस्तीन की माओ की जिंदगी उठाकर देखो, फिलिस्तीन के बहनों की जिंदगी उठाकर देखो, जानते हो पूरा दिन पूरी रात मुसलमानों नकाब में रहती है कि कब जिस्म से रूह परवाज ना कर जाए, बेपर्दा दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहती हो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब अल्लाह के घर पर हमला किया जाता है ना, तो रब्बे कायनात अपने घर की हिफाजत किया करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से 52 दिन पहले का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद में 52 दिन का वक्त बता हुआ है। ए मुसलमानों, 52 दिन से पहले जानते हो मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर काबतुल्लाह पर हमला करने के लिए अबरहा अपनी पूरी लश्कर के साथ आया था, अपनी पूरी लश्कर को लेकर काबतुल्लाह के वकार को मजरू करने के लिए आया था, काबा की हुर्मत को पामाल करने के लिए आया था। उसने ये अपने आप में सोच पैदा कर ली थी कि काबा को मैं अपने इलाके में ले जाऊंगा, अपने मुल्क में ले जाऊंगा, ताकि दुनिया के लोग मक्का इबादत ना कर सके, बल्कि हमारे जहां इबादत करने के लिए आए। इस सोच को लेकर काबा की हुर्मत को पामाल करने के लिए अबरहा अपनी लश्कर को लेकर मक्का की जमीन पर आया था। मक्का के लोगों ने जब उस लश्कर को देखा था, सारे के सारे लोग हैरान हो गए थे, सारे के सारे लोग परेशान हो गए थे, पहाड़ों में जाकर छुप गए थे। जानते हो मुसलमानों क्यों? इसलिए कि अबरहा के पास हाथी आई थी। हकीकत में जो हाथियों का लश्कर था ना, इससे पहले मक्का के लोग हाथी को नहीं देखे थे, उसके लिए वो एक अजीब जानवर था, उसके लिए एक अजीब चीज थी। हकीकत में मुसलमानों को लोगों ने उस वक्त काबा के मुतवल्ली कोई और नहीं, हमारे आका पैगंबर इस्लाम के दादा हजरत
अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जानवरों को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, चौपाओं को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान में खबर आई कि अबरहा ने जानवरों को गिरफ्तार किया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर अबरहा के पास पहुंचे। अबरहा से कहते हैं ए अबरहा, तू अपने आप में मेरे जानवरों को छोड़ दे, इसलिए कि जानवरों का कोई कसूर नहीं है। अबरहा और उसके तमाम साथी हंसने लगे, धाके मारकर हंसने लगे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, हम तो सोचे थे तुम आओगे तो काबा के लिए आओगे, तुम आओगे तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, रोगे, तुम कहोगे कि काबा की हुर्मत को पामाल न करो। तुम आए हो तो अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए, अपने चौपाओं को छुड़ाने के लिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जवाब को सुनो मुसलमानों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि जानवरों की जिम्मेदारी मेरे तय है और जानवरों की हिफाजत करना मेरा काम है, और जिसका घर है वो घर किसी और का नहीं, वो रब्बे कायनात का घर है। जिसका घर है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। ए मुसलमानों, जानते हो जब अबरहा ने काबतुल्लाह पर हमला किया था तो रब्बे कायनात ने अबाबीलों के लश्कर को दुनिया में भेजकर अपने घर की हिफाजत किया था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं होगा कि किबले अव्वल की रब तबारक व तआला कहीं ना कहीं से हिफाजत फरमाकर किबले अव्वल पर परचम इस्लाम लहराता हुआ हजरात मोहतरम, घबरा नहीं रहे ना, बात समझ रहे ना? हाँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आपकी लैंग्वेज बंगला है, मेरी लैंग्वेज कुछ है, वैसा नहीं ना मामला, समझ रहे ना पूरी बात? हाँ, तो हजरात मोहतरम मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर आप मुसलमानों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो कुछ ना कुछ दुआएं पढ़ा करो, कुछ ना कुछ नबी पर दुरूद पढ़ा करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी मैंने आपसे कहा था कि मुसलमान नबी पर दुरूद और सलाम पर अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थी। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि जब बंगाल के लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि उन्हीं को हक है पढ़ने का। लेकिन ए मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहिए हो, आज हमारी कौम के लोगों ने दुरूद को पढ़ना कम कर दिया है, इसलिए कि आज हमारी कौम के लोग ज्यादा फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर सीरियल पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज जब हम कहते हैं ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद और सलाम पढ़, तो हकीकत में मुसलमानों आज दुरूद और सलाम पढ़ने की जब बात आती है तो एक मुसलमानों एक दूसरे में लोग पैसे मुबाइसा करने पर आमादा होते हैं। जब चाय की दुकानों पर मुसलमान इकट्ठा होते हैं ना, अगर उन्हीं मुसलमानों में कोई बदअकीदा होता है तो अगर मुसलमान कहता है ए बदअकीदा ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, ये बताओ हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, ये बताओ हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों वो बदअकीदा पैगंबर इस्लाम का गुस्ताख नबी आखिरुज़्ज़मान आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को मजरू करने वाले की जबान खामोश हो जाती है। मगर अगर उसी जमीन पर हमने किसी ऐसे मुसलमान से सवाल कर दिया जो मुसलमान उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने मदरसों की उलमा की इज्जत और तकरीम करता हो, अपने मस्जिद की इमाम की इज्जत करता हो, अगर ऐसे मुसलमान से सवाल करोगे कि ए मुसलमान ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान जो पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है, नबी आखिरुज़्ज़मान की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर कहेगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस बाली टोला मालदा बंगाल की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन।
हजरात मोहतरम, अगर इस पर मैं गुफ्तगू को कहीं और लेकर चला जाऊं ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद व सलाम को सुनते हैं। आओ मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ होते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और आगे सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले हो का, दूर नजदीक के सुनने वाले हो का, काने नाले करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और वे सब उनकी शौकत मिला। हजरात मोहतरम, घबराए नहीं, मैं सरकार गौसे आजम पर भी गुफ्तगू करूंगा, ठीक है, लेकिन गौसे आजम के पहले जद्दे अंबर पर गुफ्तगू कर लूं, है ना? सुनेंगे ना? लेकिन यार एक एक करके उठ रहे, दिमाग मुंतशिर हो रहा है, ठीक है? अगर ऐसा है यार, एक दफा क्यों नहीं उठ जाते? उठ जाइए, हाँ उठ जाओ भैया, जिनको जाना चला जाए, बार बार उठ रहे हो यार, जहन मुंतशिर हो रहा ना। मैंने पहले ही आप लोगों से गुजारिश किया था कि जिनको जाना है वो जा सकता है, पकड़ कर कोई तकरीर सुना पाएगा नहीं ना जी। और जानते हो हमारे सुन्नियों का यही जलसा बचा है जहां हम अपनी कौम की इस्लाह कर सकते हैं, है ना? उन्हें बता सकते हैं कि नमाज कैसे पढ़ा जाए, उन्हें बता सकते हैं कि दुनिया के अंदर आज क्या हो रहा है, एक भाई भाई का इख्तलाफ कैसे दूर होगा, हम इन्हीं जलसों से बता सकते हैं, है ना? लेकिन इन जलसों का माहौल ऐसा हो चुका है, नात खानी हो तो खूब जम के सुना जाए, तकरीर हो तो भाग लिया जाए, तो क्या कौम की इस्लाह हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना? इसलिए मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम और आपकी अगर जिंदगी है ना तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आज हम जो सांस ले रहे हैं ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। मुसलमानों ये टेंट देख रहे हो, ये चहक महक देख रहे हो, ये सारी चहक सारी महक मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ये बल्ली टोला हो या पूरी दुनिया का कोई भी खित्ता हो, हकीकत में आज दुनिया का वजूद
हुआ है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजे की सआदत मिली तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, आज कौली वफेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मतवा से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? हम मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हम गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन और समा को पैदा न करता, मैं मक्की व मक्का को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिका, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद न होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाज़रा की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हजरात मोहतरम, इस रिवायत से पता चला ना कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को बनाया तो नबी का सदका, यहाँ तक कि दुनिया को वजूद में लाया तो नबी का सदका, और अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका। मगर ए मुसलमानों, आज उसी नबी का जिक्र हो रहा है, हम इधर उधर भागने पर आमादा है। आओ मैं आपको बताता चलो, हमारे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है कि अल्लाह ने जिंदगी दिया है, मगर उसी पैगंबर के फरमान पर हमें अमल भी करना चाहिए, उसी नबी की अजमतों को हमें सलाम भी करना चाहिए। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी उठा कर देखो, नबी आखिरुज़ ज़माने हमारे मकाम को कितना बुलंद किया है। वही पैगंबर इस्लाम का फरमाने आली शान है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान सुबह सवेरे मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, रब्बे कायनात उसे एक हज मकबूल का सवाब इनायत करता है। मुसलमानों, इस बल्ली टोला की जमीन से अगर कोई मुसलमान 5 लाख खर्च करके मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हज बैतुल्लाह के लिए जाता हो, मदीनतुल मुनव्वरा में रबी आखिरुज़ ज़मा के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जाता हो, मगर हाजी लौट कर आने के बाद बल्ली टोला की जमीन का हाजी ये नहीं कह सकता कि बल्ली टोला वालों, रब्बे कायनात ने मेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल किया है, मेरे हज को रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बल्ली टोला का मुसलमान अगर उसके पास इतनी दौलत नहीं है कि मक्का चला जाए, इतनी दौलत नहीं है कि मदीना चला जाए, अगर माँ बाप दुनिया में हो तो जब सुबह सवेरे उठा करो तो सबसे पहले मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करो, रब्बे कायनात तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत।
हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ नौजवान तबका बैठा हुआ है, इन नौजवानों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारी समाज के लोगों ने समाज का बहुत नुकसान किया है, माशरे को किस तरीके से गंदगी के माहौल में ले जाकर लोगों ने खड़ा कर दिया है। ए मुसलमानों, आज हम माँ बाप की अजमत को पामाल कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत के बजाय आज माँ बाप को गालियां हम देने पर आमादा है। ऐसे भी नौजवान लड़के पाए जाते हैं जो हकीकत में मुसलमानों बाप की कालर पर हाथ डाल दिया करते हैं, बाप की अजमत को वकार को मजबूर कर दिया करते हैं। जिस बाप की वजह से आज दुनिया सलाम करती है ना, उसी बाप की अजमतों को हम पामाल करते हैं, उस बाप की कालर पर हाथ डालकर हम बाप के वकार को मजबूर करते हैं। याद रख मुसलमान, अगर अल्लाह ने आज दुनिया में इज्जत अता किया है तो तेरी वजह से नहीं, बल्कि तेरे बाप की दुआओं की बदौलत रब्बे कायनात ने तुझे इज्जत दिया है। अपने बाप की अजमत को सलाम किया करो, अपने बाप के वकार को समझा करो। मुसलमानों, जानते हो यही दुनिया का एक लौता ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपनी जिंदगी की भी कुर्बानी दे दिया करता है। मुसलमानों, तुम्हें खबर होनी चाहिए, आज अगर तुम्हारा बाप बिस्तरे अदालत पर लेट जाए, तुम 10 मरतबा आते हो जाते हो, कभी नहीं पूछते अब्बा खाना खाए कि नहीं, अब्बा पानी पिए कि नहीं, अब्बा आपकी दवाई का इंतजाम किया गया कि नहीं। मगर ए मुसलमानों, अगर कोई दोस्त तुम्हें फोन करके कह देना कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलना है टहलने के लिए, कोलकाता चलना है टहलने के लिए, तो तुम्हारे पास फुर्सत भी है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। याद रखो मुसलमानों, जब तुम तरक्की के मनाजिलों को तय करते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही दोस्त होता है जो तुम्हारे साथ हमेशा चला करता है। मगर बात दुनिया का एक ऐसा दोस्त है कि जब तुम तरक्की करते हो तो मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता है कि रब्बे कायनात मेरे बेटे को और कामयाब कर दे, मेरे बेटे को और कामयाब कर दे। और जानते हो, जब तुम परेशानी के शिकार होते हो ना, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्तों अहबाब जब तुम्हें छोड़ देते हैं, दुनिया में जब तुम अकेले हो जाते हो, तो तुम्हारा वही बाप जिसकी अजमत को तुम पामाल करते थे, जिसकी कालर पर हाथ डालते थे, वही तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे कांधों पर हाथ रखकर कहता है, बेटा जब तक तेरे बाप के जिस्म में जान है तुझ पर कोई मुसीबत आने ना दूंगा, तुझ पर कोई परेशानी आने ना दूंगा। याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो पहले माँ बाप की अजमत को सलाम करो, माँ बाप का एहतराम करो। अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, हमने अपने माँ बाप को किस तरीके से सताया है, माँ बाप के वकार को किस तरीके से मजरूह किया है। जिस बाप ने हमें इज्जत दिया है उसी बाप की अजमत को हम मुसलमानों वकार को मजरूह करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हें यकीन ना होना तो आज रात के अंदर मालदा शहर के अंदर चले जाना, आज भी रिक्शा चलाता हुआ एक बाप तुम्हें मिल जाएगा। उससे पूछोगे कि रात की तन्हाई में, इस ठंडक के मौसम में जहां दुनिया आराम कर रही है अपने गरम गरम बिस्तर पर, तू आज यहाँ पर आकर शहर के अंदर रात की इस तारीकी के अंदर सन्नाटे में तू अपने आप में रिक्शा क्यों खींच रहा है? तो जानते हो एक ही जबान होगी, वो बाप कहेगा अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संभालने के लिए, अपने बच्चे को इज्जत अता करने के लिए मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर मेहनत मजदूरी कर दो, मगर मेरा बेटा परेशानी की जिंदगी ना गुजारे। ये मुसलमानों के बाप ही होता है। तुम्हें खबर होनी चाहिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारे वकार को ऊंचा करने के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल को संभालने के लिए, हकीकत में उस गर्मी के मौसम में, जिस मौसम में तुम्हें पंखे के बगैर नींद नहीं आती है, उस मौसम में ए मुसलमानों दोपहर के वक्त भी तुम्हारा बाप 3-3 मंजिले पर 4-4, 6-6 ईंटें लेकर चलता हुआ नजर आता है, अपने सर पर हकीकत में सीमेंट की बोरियां उठाकर ए मुसलमानों तेरे मुस्तकबिल को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। मगर यही बेटा जब जवान हो जाता है ना, यही बेटा जब चंद पैसे कमाने लगता है तो इस बेटे का गुरूर इतना बुलंद हो जाता है, इतने नशे में अपने बाप को गाली दे देता है, अगर चंद पैसे देगा तो उसका हिसाब मांगने पर आमादा हो जाता है। याद रख मुसलमान, अपने बाप की अजमत को पामाल ना किया कर, बाप के वकार को मजरूह ना किया कर। आज तेरे घर में अगर रहमत आ रही है, तेरे घर में अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो तेरी वजह से नहीं, तेरा बाप जो तन्हाई में मौला की बारगाह में आंखों से आंसुओं के कतरात जारी करता है, अल्लाह उसी आंसुओं के सदके तेरे घर में रहमतों की बरसात आता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम जानते हो हमारी कौम के लोगों ने क्या किया है? जिस माँ ने हमें इज्जत दिया ना, उसी माँ के वकार को हम मजनू करते हैं। जिस बाप ने जिंदगी का सुकून दिया ना, उसी बाप के वकार को हम मजनू करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, दुनिया की एक ऐसी माँ भी होती है जो अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आंखों से आंसू गिराया करती है। दुनिया के अंदर तुम मुसलमानों दौलत तो ला सकते हो, एक बीवी के बजाय 2 बीवी 3 बीवी भी ला सकते हो, मगर करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद, माँ बाप के जाने के बाद, माँ बाप की दौलत खरीद कर भी नहीं ला सकते हो। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप की अजमत को सलाम किया करो। अगर माँ बाप दुनिया के अंदर हो मुसलमानों, तो उनकी इज्जत और तकरीम किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। इसलिए मुसलमानों आओ मैं आपको बताता चलो, जो माँ बाप की मोहब्बत सीने में बसाता है, रब्बे कायनात उसके मकाम को बुलंद कर देता है। जो बेटा माँ बाप की दुआएं लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, अल्लाह उसे कामयाब व कामरान कर देता है। और हकीकत में मुसलमानों हालात किस तरीके से बदल रहे हैं। अगर इसी जलसे में किसी पीर की आमद हो जाती है, तो पीर की आमद पर हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं। पीर की आमद पर ए मुसलमानों नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करते हैं। अभी निसार अहमद निजामी की आमद हुई तो आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद किया। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर कोई पीर, कोई मौलाना आ जाता है, तो ए मुसलमानों हम और आप जानते हो क्या करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हैं। हकीकत में हमने तो यहाँ देखा है कि पीर साहब या मौलाना साहब आ जाए तो कोई उनके पैर को दबाता है, कोई उनके हाथ को दबाता है, कोई उनके सर को दबाता है। अगर किसी नौजवान से पूछ लिया जाए, नौजवान ये बता मौलवी और पीर के पैर को क्यों दबा रहा है, तो कहता है निसार अहमद निजामी तो भारत के अंदर हर जगह जाते हो तकरीर करने के लिए, इतनी भी खबर नहीं है कि पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मुसलमानों, दुनिया के किस मुफ्ती ने तुझे फतवा दिया है कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? कौन? तुम पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी कि दोज़ख? इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर मैं गारंटी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर ली, बूढ़े माँ बाप के कदम को दबा दिया और बूढ़े माँ बाप ने अपनी जबान से तुम्हारे लिए दुआ दे दिया, तो रब तुम्हारा का बताना उन दुआओं के सदके तुम्हें जन्नत में आला मकाम आता है। हजरात मोहतरम, कतई मत सोचना कि मैं पीर का मुखालिफ हूँ। मैं तो इतने बड़े बड़े पीरों का खलीफा हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है? हाँ, आप सिर्फ मुरीद होंगे, मैं तो खलीफा हूँ, ठीक है? लेकिन जानते हो मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि पीर की खिदमत भी बाद में करें, पहले बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें। हकीकत में मुसलमानों, मौलवी की खिदमत बाद में करें, पहले बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें। आज हमारी कौम के लोगों ने देखा है, आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से पामाल किया है। ए मुसलमानों, आज हालात किस तरीके से बदतर हो चुके हैं। आज हम अपने माँ बाप की दुआएं अपने साथ नहीं रखा करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आज हम अपनी मिन्नतों मुराद को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। अगर किसी को खबर मिल जाए कि कलकत्ता के अंदर हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशहूर मारूफ पीर आ रहे हैं, तो लोग कलकत्ता पहुंच जाते हैं क्या करने के लिए? पीर साहब से दुआ कराने के लिए। कटिहार के अंदर पहुंच जाते हैं दुआ कराने के लिए, मालदा के अंदर चले जाते हैं दुआ कराने के लिए। ए मुसलमानों, और जानते हो जब दुआ कबूल नहीं होती है ना, तो अगर जब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं यार मैं फला फला पीर के पास गया मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई। सुन मुसलमान, अगर तेरी दुआ कहीं कबूल ना हो रही हो तो तुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी माँ दुनिया के अंदर है तो सीधे अपने माँ के पास पहुंच और माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर उसी रुपट्टे का वसीला लगा ले। दावे के साथ कहता हो, जो दुआ माँ के रुपट्टे के सदके में की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात आता है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हम और आप जानते हो आज अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजनू करते हैं। अभी करबला का नाम ले लूं तो लोगों के अपने
अपने आप में लोग मचल जाएंगे कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हो रहा है। मगर ए मुसलमानों, मुहर्रम के महीने में करबला करने वालों, जरा करबला के वाक़यात को भी निगाहों के सामने रखो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की प्यारी जिंदगी की तारीख उठाओ। जब हकीकत में ए मुसलमानों यजीद पलीद ने बैतत का पैगाम हजरत इमाम हुसैन के पास भेजा था, तो नवाज रसूल अपने आप में अपने घर को आए थे। खानदान के लोगों को जमा कर कहा था, ये खानदान के लोगों सुनो, अब मदीना की जमीन पर हमें रहने के लायक नहीं है, इसलिए कि अगर हम मदीना में रहेंगे तो नाना के इस शहर को गुरबत को पामाल कर दिया जाएगा, नाना के इस शहर में खून की नदियां बहने पर आमादा हो जाएंगे। मेरे खानदान के लोगों सुनो, अब इस नाना के शहर को छोड़कर हमें कहीं और जाना होगा। जानते हो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे अपने नाना के मज़ार अक़दस पर पहुंचे और मज़ार अक़दस से सीधे जानते हो कहां गए थे? अपनी वालिदा माजिदा नबी आखिरुज़्ज़मा की सबसे चहीती बेटी, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया साहिदा कहती है, जिनको दुनिया तैयबा ताहिरा कहती है, जिनको दुनिया फातिमा ज़हरा कहती है, हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के मुसलमानों मज़ार अक़दस पर हजरत इमाम हुसैन पहुंचे हैं। नमाज रसूल ने अपनी अम्मी जान की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, अम्मी मैं नाना के शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि नाना के शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है। अगर नाना के शहर में रहा तो ये अम्मी नाना के इस शहर के वकार को मजरू कर दिया जाएगा। नवाज रसूल ने अपनी अम्मी की बारगाह में नजराने अकीदत को पेश किया था। आज मुसलमान की माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है तो ये मुसलमान को अपने माँ की कब्र पर पहुंचकर अपनी फरियाद को पेश करना चाहिए, अपनी परेशानियों के बारे में माँ की कब्र पर जाकर हाजिरी देकर अपने माँ की बारगाह में खिरात पेश करना चाहिए। मगर हमारी कौम के लोग आज मौलवी और बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपने वकार को मजरू करने पर आमादा है। सुनो मुसलमानों, जब तुमको कोई तकलीफ हो तो किसी बाबा या मौलवी के पास ना जाकर सीधे अपने माँ की कब्र पर पहुंचा करो, अपने माँ की कब्र पर पहुंचकर वहां पर अपनी फरियाद को सुनाया करो। दावे के साथ कहता हो, माँ की कब्र पर जब फरियाद सुनाओगे तो माँ मौला की बारगाह में दुआ करेगी, रब का बताला तुम्हारी माँ की दुआओं के सदके तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमाकर तुम पर रहमतों की बरसात। है ना? हाँ? थक गए हो? बंद कर दें? हाँ? सुनेंगे क्या? हाँ? कोई उठेगा भी? हाँ? हाँ, तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमान हो, अपने माँ बाप की अजमत को समझो मुसलमानों, माँ बाप के वकार को समझो मुसलमानों। हकीकत में आज यहाँ पर जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम रखा गया है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से इस ज़िक्र की महफिल का इनकाद किया गया था। ए मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ, ये मालदा की जमीन है, बल्ली टोला की जमीन है। हम तो पूरे भारत में जाते हैं दीन की खिदमत करने के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए। हकीकत में मैंने तो बहुत सी जगहों पर देखा है कि लोग सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर 100 डेग बिरयानी ए मुसलमानों लंगर करने पर आमादा है। कोई 40 डेग बिरयानी बनवाकर लंगरे गौसिया का इंतजाम करता है, कोई 150 डेग बिरयानी बनवाकर लंगरे गौसिया का इंतजाम करता है। मगर मुसलमानों, उसके दस्तरखान पर हकीकत में पूरे कस्बे, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मगर उसका सगा बाप, उसकी सगी माँ उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होती है, उसका सगा भाई उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होता है। जब हम उस सेठ जी से सवाल करते हैं, सेठ जी लंगरे गौसिया तो किए हो, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की दावत तो किए हो, मगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया है? तो जानते हो कहता है कि मेरा बाप बड़ा अकड़ू है, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो मेरा बाप मेरी बात को नहीं मानेगा, इसलिए बाप को छोड़कर पूरे बिरादरी, पूरे समाज को दावत खिलाया हो। याद रखो, कान खोलकर मेरी बात को नोट करो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारे दस्तरखान पर मौजूद नहीं है, तो 1000 डेग नहीं 1 लाख डेग बिरयानी अगर तुम लंगरे गौसिया के नाम पर तुम कर रहे हो तो रब्बे कायनात 1 लाख डेग तुम्हारे मुंह पर मार देगा। इसलिए कि जिसके माँ बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह रसूल नाराज हुआ करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, जिसके माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह रसूल नाराज होते हैं। मतलब क्या मिला मुसलमानों? अगर तुम लंगरे गौसिया करना चाहते हो तो सबसे
है उनके पास जाओ। अगर तुम्हारा बाप तुमसे मानने के लिए तैयार नहीं है ना, तो सीधे अपने बाप को अपने गले से लगा लो। जब दिल से दिल का मिलना होगा, दावे के साथ कहता हो, बाप के दिल से नफरत खत्म होगी, बाप के दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे माँ बाप तेरे दस्तरखान पर मौजूद होंगे। उस वक्त तुझे 100 डेग बिरयानी बनवाने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम के नाम पर अगर तुमने 11 रुपया की सदका कर दिया, तो रब्बे कायनात उसी सदके को कबूल फरमाकर तेरे घर में बरकतों की बरसात आता। है ना मुसलमानों, आज के बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की खिदमत करेंगे, है ना? हाँ? है ना? और हकीकत है मुसलमानों, आज अगर माँ बाप की खिदमत ना करोगे ना, कल पूरी जिंदगी तुम पछताने पर आमादा होगे। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इसी बल्ली टोला के उस मुसलमान से मिलना जिसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो गई होगी, उसकी कलाई को पकड़कर कभी कहना, दादाजी बाबा जी आप बताइए, क्या आपके बाप की याद अभी भी आती है? क्या आप अभी भी अपने माँ को याद करते हैं? दावे के साथ कहता हूँ, उसकी आंख में झांक कर देखना, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाएंगे। इसलिए कि मुसलमानों, उस बूढ़े को भी पता है कि मेरा बाप रहता था तो परेशानी में मेरे साथ खड़ा रहा करता था, मेरी माँ रहती थी, परेशानी आती थी तो मौला की बारगाह में हाथ उठा देती थी। उसके बाद जितने भी दुनिया के अंदर आते हैं मुसलमानों, हर कोई हमसे मतलब की मोहब्बत करता है। बेटा दौलत की मोहब्बत में हमसे मोहब्बत करता है, बेटी दौलत की मोहब्बत में हमसे मोहब्बत करती है। मगर ए मुसलमानों, माँ बाप दुनिया की एक अजीब ऐसी दौलत है जो हमसे किसी चीज के लिए मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि हमेशा इस बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं कि रब्बे कायनात हमें कामयाब कर दे। इसलिए अपने बाप से मोहब्बत करो। उस बेटे से कभी मिलना मुसलमानों जो बेटा बचपन में यतीम हो गया हो, हकीकत में दुनिया उसे ठोकर मारने पर आमादा होती है। जिसका बाप दुनिया में होता है ना, अगर बिस्तर पर भी हो, लोग उससे डरने पर आमादा होते हैं, उससे लोग सहमने पर आमादा होते हैं। इसलिए मुसलमानों में आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जो लोग अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं वो कान खोल कर सुन ले। अगर आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे तो याद रखना, तुम भी एक दिन बुढ़ापे की मंजिल को तय करोगे तो आने वाली नस्ल तुझे भी तकलीफ देगी। अभी मेरी उम्र 28 साल है। मैंने इसी 28 साल के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा देखा है। जब मैं 12 साल का था ना, उसी वक्त का वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 12 साल की उम्र में मैंने देखा था कि मेरे मोहल्ले के सामने एक मोहल्ला था, वहां पर एक बूढ़ा बाप था जो एक पैर से माजूर था। उसका लड़का उसे दिन रात मारा करता था, यहाँ तक कि मुसलमानों उसको घसीट कर इस तरीके से सड़क पर लेकर आता था, घसीट घसीट कर मारा करता था। बाप आंखें निकालता था, बाप तो दुनिया से रुखसत हो गया। अब जानते हो 16 साल के बाद मैंने देखा भी हाल के अंदर वो जब बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हुआ ना, तो उसकी नस्ल आज उसे पकड़कर उसी तरीके से सड़क पर घसीट घसीट कर मार रही है। पता क्या चला कि जिस तरीके से तुम खेत की बुआई करोगे उसी तरीके से तुम कटाई करोगे। अगर तुमने गेहूं की पैदाइश के लिए तुमने अपने आप में अपने खेत में बुआई की है तो उससे चावल की ख्वाहिशों तमन्ना ना करो, जो बोओगे वही काटोगे मुसलमानों। इसीलिए अपने बच्चों को अवतार बख्शो। और खास करके नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, अगर दुनिया के अंदर इज्जत और अजमत को बुलंद करना है तो तुझे माँ बाप की खिदमत गुजारी कर लो। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने अगर अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी की है तो रब तबारक व तआला ने उनके वकार को बहुत बुलंद किया है, उनके दर्जे को बहुत ऊंचा किया है। आप पूछेंगे कैसे? तो शबे बारात का महीना जब आता है तो 15वीं शाबान मुअज्जम को हम और आप जानते हो फातिहा दिलाते हैं। आपके बंगाल ही में नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते खित्ते में जहां भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है, हर कोई हजरत उवैस करनी के नाम पर अपने घर पर फातिहा की महफिल सजाता है। हर कोई उवैस करनी के नाम पर ये मुसलमानों फातिहा रखता है। उवैस करनी को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे मिला मुसलमानों? आओ मैं आपको बताता चलो। अपने माँ की खिदमत की बुनियाद पर मिला। ए मुसलमानों, एक दिन की बात है, नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ
फरमा है, हजरत उमर भी है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। नबी ने हजरत उमर अली से इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी मुलाकात कभी उवैस करनी से हो ना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कराना। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए आपसे बेहतर किसकी दुआ हो सकती है? या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए आपकी दुआ सबसे बेहतर है। नबी ने इरशाद फरमाया, उमर अली, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है उवैस करनी का मकाम रब की बारगाह में कितना ऊंचा है। अगर उवैस करनी में मेरी गुनहगार उम्मत के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दिया और उसकी मां ने अपनी जबान से आमीन की सदाओं को बुलंद कर दिया तो रब तबारक व तआला मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमाकर उन पर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने अवैस करनी, नारे तकबीर। थके नहीं है ना भैया? हाँ, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ कि कहीं यार जबरदस्ती ऐसा ना लगे कि मैं जबरदस्ती सुना रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है ना? थक गए हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ थक गए हैं, है ना? ऐसा है क्या? हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें दादा कहा जाता है, आपके यहाँ जवान को भी दादा कहा जाता है ना? सही है ना जी? ऐसा है हाँ, क्योंकि हमारे साथ कई बंगाल के लोग पढ़ाई भी किए हैं और मैं कई मरतबा बंगाल में आया भी हूँ, है ना? तो मैंने दादा का जुमला इस्तेमाल किया था, तो ये मत सोचना कि 18 साल का, है ना? हाँ, दादा का मतलब 50 प्लस, ठीक है? हाँ, है ना जी? तो हजरत मोहतरम, मैं आप हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये सरकार गौसे आज़म की महफिल है। अज़मत वालिदैन इसलिए बता दिया कि हम और आप आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं। मेरा मौजू ये नहीं है, नहीं तो मैं इस पर भरपूर गुफ्तगू करता। मेरी यूट्यूब पर एक दो नहीं हज़ारों तकरीरें हैं, मैं अज़मत वालिदैन पर कई घंटे भी गुफ्तगू कर सकता हूँ, मगर मैं आज आपके यहाँ अपनी पूरी कौम की हर मसले पर थोड़ा थोड़ा इस्लाह करने के लिए आया हूँ। तो हजरत मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलूँ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ पहलू आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम गुनहगार मोहब्बत क्यों ना करें? ए मुसलमानों, दुनिया कहती है कि बरेलवी पागल हो चुका है, दुनिया कहती है सुन्नी पागल हो चुका है, ये हमेशा नबी के मिलाद को रखते हैं, ये नबी के जिक्र की महफिल को सजाते हैं। याद रखो मुसलमानों, हम पागल नहीं हुए हैं, हम तो अपने पैगंबर की अजमत का तराना जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा है कि अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब्बे कायनात इस दुनिया को वजूद में ना लाता। आओ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में चला जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका ये बताइए कि रब तबारक व तआला ने ज़मीन व ज़मान से पहले, मक्की व मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया? अब मुसलमानों, नबी आखिर ज़बान के ज़बान अक़दस से निकली हुई बात को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए जाबिर, रब्बे कायनात ने ज़मीन व ज़मान से पहले, मक्की व मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी आखिर ज़बान इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया, एक खास मकाम में उस नूर को रखा गया। हकीकत में जब उस नूर ने चाहा कि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, रब्बे कायनात को और राज़ी किया जाए, रब तबारक व तआला के और करीब हो जाए, तो जानते हो उस नूर ने सबसे पहले अल्लाह की इबादत किया। ए मुसलमानों, 2 रकात नमाज नफल का इहतमाम किया। नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का इहतमाम किया। मुसलमानों, अब अपनी जिंदगी पर देखो और नबी आखिर ज़मान की अज़मत को देखो। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़मीन और आसमान को नहीं बनाया है, सिर्फ नबी के नूर को पैदा किया है, मगर उस नूर ने जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, अल्लाह को और राज़ी करना चाहा, तो 2 रकात नमाज नफल का इहतमाम करते हैं। आज बंगाल का मुसलमान, आज भारत का मुसलमान अल्लाह की इबादत को छोड़कर मौला से कहता है, रब्बे कायनात रहमत की बरसात अता कर दे, रब्बे कायनात बरकत की बरसात अता कर दे। ए मुसलमानों, अगर रहमतों और बरकतों की बरसात चाहिए हो तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करो, जो नमाजियों की तादाद से आज घटती हुई नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, आज हम और आप नमाज की
ادائیگی نہیں کرتے ہیں, اپنے گھر پر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں, مگر بھارت کی زمین پر اگر کسی مسجد کی ایک اینٹ کوئی غیر اٹھا لینا تو پورے بھارت کے مسلمان وہ بینا مچانے پر آمادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں فلاں مسجد کے وقار کو مجروح کر دیا گیا, فلاں مسجد کی اینٹ کو اٹھا لے جایا گیا. یاد رکھو مسلمانوں, جب تم اپنی مسجدوں کو ویران کرتے جاؤ گے تو یہ غیر لوگ ہماری مسجدوں کو حملہ کرتے جائیں گے. جس طریقے سے تم نماز جمعہ کی ادائیگی کرتے ہو, اگر اسی طریقے سے تم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے لگو, دعوے کے ساتھ کہتا ہو کہ باطل طاقتیں ہمارے قدموں کو چومتے ہی نظر آئیں گی. مذہب اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں ہوتا ہوا نظر ہے نا. تو حضرات محترم میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام نے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا. نبی نے کس طریقے سے نماز کی ادائیگی کی ہے. اے مسلمانوں, ہم اور آپ جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ہم نماز کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری نماز میں 10 سے 12 منٹ لگتا ہے, لیکن نبی آخر الزمانے جانتے ہو جب حقیقت میں قیام کیا ہے تو 70,000 سال تک قیام کرتے رہے, 70,000 سال تک رکوع کرتے رہے, 70,000 سال تک سجدہ کیے, 70,000 سال تک جلسہ میں رہے. اس طریقے سے نبی آخر الزمان کے نور نے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 2 رکعت نماز پوری ہو گئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا, محبوب اب میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں, اب میں تجھ سے بہت زیادہ راضی ہو گیا ہوں. مان تو کیا مانگتا ہے, آج جو تو مانگے گا آج تجھے عطا کیا جائے گا, جو کہے گا آج تجھے دیا جائے گا. مسلمانوں, اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ, اس بلی ٹولہ پر اگر کوئی اللہ کا ولی آ کر کہے کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں, بلی ٹولہ والوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ نے پوچھا ہے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بلی ٹولہ کا مسلمان کہے گا کہ رب سے کہہ دو مجھے جائیداد بہت زیادہ چاہیے, مجھے زمینیں بہت زیادہ چاہیے, مجھے بلڈنگیں بہت زیادہ چاہیے, مجھے گاڑیاں بہت زیادہ چاہیے. اے مسلمانوں, یہ تو بنگال اور بھارت کے لوگوں کی سوچ ہے, مگر اپنے نبی کی عظمتوں پر قربان جاؤ, پیغمبر اسلام کی عظمتوں کو کروڑوں سلام بھیجو. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, محبوب مانگ تو کیا مانگتا ہے, جو بھی مانگے گا آج تجھے دیا جائے گا, جو بھی کہے گا آج تجھے عطا کیا جائے گا. تو جانتے ہو نبی آخر الزمان نے عریضہ پیش کیا, رب کائنات اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے, کچھ اگر عطا ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا, ایک قوم کا قائد بنا کر بھیجے گا. بتقاضائے بشریت میری قوم کے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوں گی, میری قوم کے لوگوں سے گناہ ہوں گے. اے رب کائنات اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو میری گنہگار امت کی تو مغفرت کر دے, یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا, یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, درود پاک, درود پاک, صحیح شریعت مصطفیٰ, دین اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. حضرات محترم, یہ ہمارے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. مگر آؤ میں آپ کو بتاتا چلو, جو لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی سے محبت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو, نبی کا جملہ بار بار اپنی زبان پر کیوں رکھتے ہو, آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانوں, ہم نبی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. ہمارے نبی نے ہم گنہگاروں کو اس وقت یاد کیا ہے جب زمین و آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا ہے. مگر اے مسلمانوں, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو, حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آپ سب کو لے کر چلو. حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے, جب میرے بیٹے محمد کی ولادت باسعادت کا وقت ہو رہا تھا تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں ایسی روشنی عطا کیا تھا, تمام آسمان کے ستاروں کو میرے چھت پر لا کر جمع کر دیا تھا. میں اپنی مکہ کی زمین سے بصرہ کے اونٹنیوں کو اپنے آپ میں دیکھ رہی تھی. حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ فرشتوں نے 3 علم کو لایا ہے, ایک کعبہ کی چھت پر لگایا ہے, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں لگایا ہے. حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے, جب میرے بیٹے محمد کی ولادت باسعادت کا وقت آیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک رب کے فرشتے اپنے ہاتھ کو باندھ کر کھڑے ہیں اور اپنی زبان میں نبی پر کروڑوں سلام بھیج رہے ہیں. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے نبی کی ولادت مبارک پر عریضہ پیش کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم,
नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीकी के सुनने वाले बुका, काने लाने करामत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे ला। इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसके मोहब्बत। नारे तकबीर, शरीयत आला हजरत, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फातिमन हुजूर ताजु सरिया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मिंबर नूर पर आपके मस्जिद के खतीब व इमाम तशरीफ रखते हैं, ठीक है? और हमेशा अपने इमाम की इज्जत किया करो। हाँ, आलिम बामल हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिलाल साहब किबला और आलिम नबील फाजिल जलील माहिर उलूम व फ़ुनून हज़रत अल्लामा मुफ्ती बहाउद्दीन साहब किबला, ठीक है? इन उलमाए किराम से मोहब्बत किया करो। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं नबी आखिरुज़ ज़मां की मोहब्बत का कुछ टुकड़ा आपकी निगाहों के सामने रखता चलूँ। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत जब हुई है, हज़रत सज्जदा आमिना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया ना, तो अपने सर को सजदे में रख दिया, अपनी ज़बान से कुछ कह रहा था। जब मैं कान लगाकर सुनी तो मेरा बेटा अपनी ज़बान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों को याद करते हुए नजर आएंगे। ए मुसलमानों, अब आपको यही से पैगाम देना चाहिए था हो, नबी आखिरुज़ ज़मां ने हम गुनहगारों को याद किया है। अब आओ पैगम्बर इस्लाम की अजमत को देखो मुसलमानों। नबी की बचपन से लेकर 63 साल जिंदगी की जब तारीफ उठाओगे, नबी आखिरुज़ ज़मां ने अपनी जिंदगी के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत किया है, किसी के लिए आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है, तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। जहां तक कि मुसलमानों, जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, पैगम्बर इस्लाम का विसाल जब दुनिया से हुआ है, नबी आखिरुज़ ज़मां के जब जिस्म अतहर को मज़ार अक़दस में रखा गया है, ए मुसलमानों, आखिरी दीदार करने के लिए सहाबा ने सोचा क्यों ना नबी आखिरुज़ ज़मां का आखिरी दीदार कर लिया जाए, इसलिए कि वद्दुहा वाली सूरत हो सकता है अब देखे या ना देखे, क्यों ना नबी आखिरुज़ ज़मां का आखिरी दीदार कर लिया जाए। हकीकत में मुसलमानों, जब नबी आखिरुज़ ज़मां के चेहरे अनवर से चादरे ततहीर को हटाया गया ना, तो जानते हो नबी आखिरुज़ ज़मां के लब जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा का बयान है, हमने सोचा हो सकता है नबी अपने अज़वाज को याद कर रहे हो, नबी सहाबा को याद कर रहे हो, नबी खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, मगर जब हम अपने कान को लगाकर सुने ना, तो नबी अपनी मज़ार अक़दस में अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से इतना प्यार करते हैं। ये तो नबी के आने और जाने की बात हुई। जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हदीस रसूल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। ए मुसलमानों, हदीस रसूल अब निगाहों के सामने आपके रख रहा हो, अब अपने दिल की तख्ती को खोल कर मेरी बात को नोट करो। नबी आखिरुज़ ज़मां तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? साहब ये रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, आज जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो या रसूल अल्लाह आप कहाँ पर मिलोगे? मुसलमानों, सहाबी रसूल के अकीदे पर कुर्बान जाओ। सहाबी रसूल को पता है कि नबी मैदान महशर में हम गुनहगारों से मुलाकात करेंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ पर आप हम गुनहगारों से मुलाकात करेंगे? मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मां की अज़मत पर करोड़ों सलाम भेजो, नबी आखिरुज़ ज़मां की मोहब्बत अपने सीने में बसाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो,
पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उनका जिक्र करने जा रहा हूं जिनके राज दुलारे ये हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आप सुनेंगे थोड़ी देर। ये कह रहे थे 3 घंटा बोलिएगा, है ना? और अभी थक गए हैं, सही है ना? हाँ, तो हज़रात मोहतरम सुनेंगे ना? हाँ, तो आप हज़रात यहाँ आ जाए, आ जाओ भैया। हाँ, आ जाओ यार, ऐसी महफिल बार बार नहीं मिलेगी। हाँ, महफिल सजा सकते हो सकता है हम लोग ना आए, है ना? तो हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि सहाबे रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी रहेगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो मेरे आका दूसरा मकाम कहाँ पर होगा? उसकी वजाहत भी आप फरमा दें। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत पर कुर्बान जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा कि मैं पुलिसरात पर जलवा फरमा होगा और मेरी प्यासी उम्मत जब पुलिसरात पर आएगी तो मैं अपने हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासी रिस्क उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसर तना तक किसकी रसाई जाते ये है आते। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये तो दूसरा मकाम हुआ। या रसूल अल्लाह, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिले तो वो तीसरा मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमतों को सलाम करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहां पर होगा कि मैं पुलिसरात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर पीछे होंगे और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबरे इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कद्र की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अवजद करके गुजर गए, रजा पुल से अवजद करके गुजर गए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, है ना? तो थक गए भैया? हाँ, हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने हम गुनहगारों से इतना प्यार किया है, हम गुनहगारों से इतनी मोहब्बत की है, लेकिन ए मुसलमानों, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है कि रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है। ये माए बहने बेटियां बैठी हुई है, अगर आज इन्हें जिंदगी का वकार मिला है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो इन बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था, इनके वकार को मजबूर कर दिया जाता था। ए मुसलमानों, इनकी इज्जत व वकार को छीन लिया जाता था, इनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, इनके मकाम को इस तरीके से कुचला जाता था। मगर ए मुसलमानों, नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इन बेटियों के मकाम को इतना बुलंद किया, जिस बेटी को जहमत समझा जाता था, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जिस घर में बेटी पैदा हुई गोया उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ, जिस घर में बेटी आई
गोया उसके घर में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल हुआ। मगर ए मुसलमानों, जिन बेटियों को नबी ने रहमत कहा था, आज वही बेटियां नबी आखिरुज़ ज़मा की शरीयत की धज्जियां सबसे ज्यादा उड़ा रही है। नबी के अज़मत को सबसे ज्यादा पामाल ये बेटियां कर रही है। आज बेपर्दगी के साथ हकीकत में ए मुसलमानों अपनी जिंदगी के वक़ार को नीचा कर रही है। जिन बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया था, जिन बेटियों को ए मुसलमानों अपनी जिंदगी के वक़ार को ऊंचा करना था, जिन बेटियों को कुरान की तालीम पर अमल करना था, आज वो बेटियां बेहयाई और बुराई में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने पर आमादा है। हमारी कौम की बेटियां, जिसका नाम फातिमा है, जिसका नाम आयशा है, जिनका नाम सायरा है, जिसका नाम सलमा है, जिसका नाम हाजरा है, ए मुसलमानों आज रखती है तो मज़हब इस्लाम के नाम पर अपना नाम, और जानते हो सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड ये अपने आप में करने पर आमादा है, अपने जिस्मों की नुमाइश ये करने पर आमादा है, अपनी इज्जतों को ये नीलाम करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, अगर आज तुम अपनी बेटी की जिंदगी की तरबियत पर ध्यान ना दोगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारी बेटी समाज में तेरे वकार को मजबूर कर देगी, समाज में तेरी इज्जत को नीलाम कर देगी। अगर तू समाज में अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहता है तो अपनी बेटी को बेपर्दा बाजारों की जीनत ना बना, इसे पर्दे में रहने की तलकीन दे। जिसकी बेटी पर्दे में होती है उसका बाप दुनिया के अंदर, समाज के अंदर अपने सर को उठाकर चलता है, और जिसकी बेटी बेपर्दा होती है वो समाज में सर को झुकाकर चलता है। इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों की अज़मतों के वकार को ऊंचा करो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखा करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब तुम्हारी बेटियां पर्दे में होंगी तो रब तबारक व तआला उन बेटियों पर रहमतों की बरसात अता करेगा। और जो बाप अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करके किसी नेक लड़के के साथ रिश्ता करता है और उसकी बेटी अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है तो बाप जहन्नमी ही क्यों ना हो, रब्बे कायनात उसकी बेटी की फरमाबरदारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता। इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर ताजुस सरिया, हुजूर अशरफुल औलिया, नारे हैदरी। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आज आप देख रहे हैं ना समाज की बेटियां बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन करके आज मजहब इस्लाम को बदनाम कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी भी बेटियां धर्म परिवर्तन की है ना, अगर जो वो मजहब इस्लाम के मानने वाले घर में पैदा हुई है मगर उनका ताल्लुक कुरान से ना था, उनका ताल्लुक नमाज से ना था, उनका ताल्लुक शरीयत मुस्तफ़ा से ना था। हकीकत में मुसलमानों, अगर आज तुम अपनी बेटियों को तलकीन ना करोगे, अपनी बेटियों की तरबियत पर ध्यान ना दोगे तो समाज में तुम्हारी इज्जतें नीलाम होती हुई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए, आज आए दिन अखबार और सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि फला की बेटी फला जगह, फला मोहल्ले, फला शहर की बेटी एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके आंतरिक परिवर्तन करके अपने वकार को मजबूर कर रही है। तुम्हें खबर होना चाहिए, अभी 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पश्चिमी इलाके के अंदर हकीकत में एक गार्ड की नौकरी करने वाले बाप की बेटी जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रख रहा था, जो कलमे शहादत का इकरार करके मुसलमान था, हकीकत में उसकी बेटी एक गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करके थाना के कैंपस के अंदर 200 लोगों के बीच में हकीकत में अपने गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी रचाती है। उसका बाप उसके सामने गुरुता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है बेटी अपने बाप की अजमत को पामाल ना कर। ए बेटी आज तेरी वजह से मैं जलील और रुस्वा हो जाऊंगा। ए बेटी तेरा काम ये नहीं है, तू तो मज़हब इस्लाम के घराने में पैदा हुई है। बेटी तेरे लिए ये जिंदगी अपने आप में दोज़ख से कम नहीं है। ए बेटी तू अब भी मान जा, अब भी मैं तेरी शादी शान और शौकत के साथ करूंगा। बेटी तू घर को चल। हकीकत में बाप रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पैरों में गिरकर ए मुसलमानों रो रो कर कह रहा था बेटी अपने घर को लौट चल। ए बेटी तेरी जिंदगी जहां नहीं, तेरी जिंदगी तेरे बाप के आंगन में गुजरेगी। ए बेटी तू चल, तेरे लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम करूंगा। लेकिन मुसलमानों जानते हो उस बेटी पर इश्क का नशा ऐसा छाया था कि थाना के कैंपस में जहां पर 200 लोग खड़े थे, उसी 200 लोगों के मजमे के अंदर अपने
बाप के सीने पर इस तरीके से हाथ मारती है, अपने बाप को जलील और रुस्वा कर देती है, अपने बाप के वकार को मजरू कर देती है। जानते हो मुसलमानों, उस बेटी ने अपने बाप को इस तरीके से हाथ क्यों मारा था? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाप ने बचपन से अपनी बच्ची की तरबियत नहीं किया था, क्योंकि जब बेटी पैंट पहनकर टहल रही थी ना, तो बाप कह रहा था अभी छोटी है। जब वही बेटी नंगे सर बाजारों में घूम रही थी ना, तो कहते था कि मेरी बेटी इस तरीके से नहीं है। याद रखो मुसलमानों, अपनी बेटियों की तरबियत पर अच्छी पकड़ रखा करो, उनकी तरबियत पर ठीक तरीके से देखभाल किया करो, इसलिए कि जब बेटी की तरबियत करोगे तो रब्बे कायनात तेरी बेटी के वकार को ऊंचा करेगा। और अपनी बेटी को बचपन ही से हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की कहानियां बताया करो कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी के अरकान को किस तरीके से पूरा किया था। और जानते हो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो किरदार भी बताया करो कि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद, करबला के लोगों को शहीद करने के बाद, ए मुसलमानों खानदान अहले बैत के हकीकत में छोटे छोटे बच्चे और तमाम लोगों को शहीद करने के बाद जब खेमे हुसैन को जला दिया गया था, तो जानते हो हजरत सैयदा ज़ैनब और खानदान की बेटियों के सरों से रुपट्टे को छीन लिया गया था। तो सैयदा ज़ैनब ने अपने खानदान की बेटियों से कहा था, मेरी खानदान की बेटियों, अब नबी की अज़मत पर चलने का वक्त आ चुका है, नबी की शरीयत को बचाने का वक्त आ चुका है, अपनी कौम की बेटियों को मैसेज देने का वक्त आ चुका है। आज करबला के मैदान में हमारे सरों से चादरों को छीन लिया गया है। ए मेरे खानदान की बेटियों, आज अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करके उम्मत की बेटियों को मैसेज दे दो कि करबला की जमीन पर सैयदा ज़ैनब और खानदान की बेटियों ने उस वक्त भी पर्दा किया था जब उनके सरों से चादरों को छीन लिया गया था। अगर ये किरदार अपनी बेटियों को दे दे, ये सीरत अपनी बेटियों को दे दे, तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी, मगर किसी गैर महरम के साथ, किसी गैर मजहब के मानने वाले किसी लड़के के साथ शादी न रचाएगी, बल्कि ए मुसलमानों, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर अपने बाप को इज्जत बख्शती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का तोड़ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। नारे तकबीर, नारे हैदरी, पीर का दामन, ओली का दामन, डॉक्टर का दामन, नारे तकबीर। अब 2-4 मिनट और सुन लीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा हो जाएगा लगभग है ना, बहुत हो गई तकरीर। हाँ सुनेंगे 2-4 मिनट? हाँ तो ये 2-4 मिनट में सोच रहा हूँ सरकार गौसे आजम पर बोल दूं, क्योंकि गौसे आजम के राज दुलारे यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? हजरात मोहतरम, ये सिंटू शेख और उनके जितने भी दोस्तों अहबाब हैं, सद्दाम भाई और नूर आलम भाई, तहसीन भाई, जितने भी लोग हैं, मैं सबके नाम को नहीं जानता। लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ इस जलसे को रचाया बसाया है ना। अल्लाह इनके रचाने बसाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम की आमद आज इस मिंबर पर हुई है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अनमोल हीरे शहंशाह तरन्नुम जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब और बुलबुल तैयबा जनाब नुमान बरकाती साहब है ना, कलकत्तेवी साहब तशरीफ रखते हैं है ना। तो मेरी 2-4 मिनट गुफ्तगू और समाप्त कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी गौसे आजम पर एक बात कर कर मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो सरकारी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख का कुछ पहलू आपको बताता चलो। ए मुसलमानों, सरकारी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की जब सीरत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ करामतों के ज़हूर को नहीं दिखाया है, बल्कि गौसे आजम ने अपने चाहने वालों को मैसेज भी दिया है, अपने मानने वालों को पैगाम भी दिया है कि जिंदगी के अरकान को कैसे पूरा किया जाए, तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपनी जिंदगी को कैसे ऊंचा किया जाए। हकीकत में इस बल्ली टोला की जमीन पर रहने वालों मुसलमानों में तुम्हें पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। आज बल्ली टोला की जमीन पर जब मुसलमान पर कोई परेशानी आती है, मुसलमान पर कोई मुसीबत आती है, तो मुसलमान जो सोचता है किसी बाबा के पास पहुंच जाऊंगा, ताबीज मिल जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। मैं कहता हूँ मुसलमान, ताबीज हासिल करने से पहले हकीकत में जो तू नमाजों को
तर्क कर रहा है ना, पहले अपनी मस्जिद को आबाद किया कर, मस्जिद में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा किया कर। हकीकत में जो मुसलमान नमाज की अदायगी करता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर किया करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर में बरकतों की बरसात अता किया करता है। आओ बगदाद मोहल्ला की जमीन का भी वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, बगदाद शरीफ की जमीन पर एक नौजवान रहता था जो नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, सदका तो खैरात भी करता था, मगर जिंदगी के अंदर उसे सुकून ना मिलता था, उसके घर में बरकत नहीं होती थी। कोई भी बिजनेस करता था, हमेशा बिजनेस में घाटा हुआ करता था, नुकसान हुआ करता था, जिंदगी से मायूस था, परेशान था। एक नौजवान से उसकी मुलाकात हुई, उस नौजवान ने कहा मेरे भाई तू हमेशा मायूस क्यों रहा करता है, तू उदास क्यों रहा करता है। उस नौजवान ने कहा यार उदास ना रहूं, मायूस ना रहूं तो करूं क्या, कोई भी काम करता हूं उसमें बरकत नहीं होती है, कोई भी काम करता हूं उसमें अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता है। हकीकत में मुसलमानों अपने आप में जिंदगी से परेशान हो चुका था। हकीकत में नौजवान ने कहा सुन नौजवान, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम और आप तो बगदाद की जमीन पर ताल्लुक रखते हैं, इसी बगदाद की जमीन पर बड़े पीर हैं, बड़े पीर के पास चले जा, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में चला जा, बिगड़ी हुई अपने आप में तुम्हारी बन जाएगी। तुम्हारा कोई भी काम ऐसा होगा जो नहीं हो रहा होगा, गौसे आजम के दर पर जाओगे तो गौसे आजम के फैजान से अल्लाह तेरे काम को पूरा कर देगा। हकीकत में मुसलमान और नौजवान सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करता है सरकार मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है, सरकार आप ही करम फरमा दे, सरकार आप ही कुछ काम कर दीजिए ताकि मेरे घर में अल्लाह की बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होने लगे। ए मुसलमान और नौजवान ये सोच लेकर गया था, फिक्र लेकर गया था कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं शरीयत मुस्तफा के अहकाम पे अमल भी करता हूँ, सबका भी करता हूँ। हो सकता है सरकारे गौसे आजम कोई वजीफा कोई अमल बता देंगे, उसी पर अमल कर लूंगा, अल्लाह मेरे घर में रहमत की बरसात अता करेगा। सरकारे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया नौजवान ये बता तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है। नौजवान ने कहा था सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सरकारे गौसे आजम ने कहा नौजवान सीधा मार्केट चला जा और वहां से एक कपड़ा खरीद कर ला, अपने दरवाजे को ढक दे। नौजवान परेशान हो गया, सोचने लगा मौला तो मैं तो यहाँ आया था कोई वजीफा लेने के लिए, कोई अमल लेने के लिए, लेकिन सरकार गौसे आजम ने मुझसे कहा है कि एक कपड़ा लाकर अपने दरवाजे को ढक दे, इसमें लौजिक क्या है, इसमें मामला क्या है। अपने आप में तड़प गया, सोचने लगा मौला ये मामला क्या है, मगर बड़े पीर की बात थी। वो गया मार्केट में एक कपड़ा खरीद कर लाता है, अपने दरवाजे को खूब अच्छी तरीके से ढक देता है, अब अपने कारोबार को शुरू करता है, नमाज की अदायगी कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, अब कारोबार को कर रहा है। अभी चंद दिन ना बीते थे मुसलमानों, उसके घर में रहमत और बरकत की बरसात होने लगी। अभी चंद अरसा ना बीता था ए मुसलमानों, उसके जहां इतनी कमाई होने लगी कि बगदाद के जहां अमीरों का नाम लिया जाता था वहीं उस नौजवान का भी नाम लिया जाता था, बगदाद के रईसों में उस नाम का भी शुमार होने लगा। नौजवान एक दिन सोचने लगा कि मौला अब तो दौलत बहुत हो गई है, पैसा बहुत हो गया है, क्यों ना गौसे आजम की बारगाह में जाकर उस मसले का हल निकाल कर लाऊं जिस मसले पर हमेशा मेरी सोच टिकी रहती है। हकीकत में गया बगदाद मोहल्ला में मदरसा निजामिया में सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज करता है सरकार आज एक मसले का हल निकलने के लिए आया हो। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया नौजवान वो कौन सा मसला है। हकीकत में नौजवान ने कहा था सरकार मैं इस बात को लेने के लिए आया हूँ, कहने के लिए आया हूँ कि सरकार मैं आपकी बारगाह में बहुत दिन पहले आया था तो ये सोच ये फिक्र लेकर आया था कि आप मुझे कोई वजीफा बताएंगे, कोई अमल बताएंगे, मैं उसी पर अमल करके अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करूंगा। मगर सरकार आपने कोई वजीफा कोई अमल ना बताया, बल्कि सरकार आपने कहा कि एक कपड़ा खरीद कर ला दरवाजे को ढक दे, इसमें मामला क्या है, इसी की वजाहत आप फरमा दीजिए। अब मुसलमानों अपने दिल की तख्ती को खोलकर अपने कान की लौ को लगाकर निसार अहमद निजामी की गुफ्तगू को दिल अपने आप में संजीदगी के समाप्त करना। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया नौजवान मैंने तुझसे पूछा था कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तूने कहा था कि मेरा घर सड़क के किनारे पर है, तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा था कि तेरे घर के सामने से लोग गुजरा करते थे, उसमें कुछ नमाजी होते थे, उसमें कुछ बेनमाजी होते थे। जब तेरे घर से नमाजी गुजरते थे ना, जब तेरे घर के अंदर वो अपने आप में देखते थे तो अल्लाह की रहमत तेरे घर में नाजिल होती थी, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर पर पड़ती थी रब तबारक व तआला बरकतों और रहमतों को छीन लेता था। तो ए मुसलमानों
ذہن ملا کہ اگر کسی بے نمازی کی نگاہ کسی گھر پر پڑ جائے تو اللہ رحمتوں اور برکتوں کو چھین لیتا ہے. تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو اللہ اس گھر میں رحمت کا نزول کر دے. ہے نا؟ تو حضرات محترم ہم اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں, قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ رب العزت ہم جب قرآن پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات عطا کرے گا. اب آخری بات ایک یہ ہے کہ میں اکثر جلسوں میں بولتا ہوں, اور میں جب آیا تو کھالتی پور کے لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جو کھالتی پور میں بولے تھے وہی 2 منٹ کی بات ہے, کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. حضرات محترم آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے. یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے اپنے شہنشاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے. یعنی اے پروردگار عالم تو میرا خالق و مالک ہے, میں تیرا بندہ ہوں اور میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں. تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال, مگر میرے دل کی تمناؤں کا مرکز میری حسرتوں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے کہ تو اپنے دیدار پر انوار کا ایک جلوہ دکھا دے. اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, ادنا ہو یا اعلیٰ, غلام ہو یا آقا, بوڑھا ہو یا نوجوان, کمزور ہو یا پہلوان, سیاست کا نگہبان ہو یا حکومت کا پاسبان, رعایا ہو یا جاگیردار, مجرم ہو یا تھانے دار, حاکم ہو یا محکوم, خادم ہو یا مخدوم, غریب ہو یا امیر, بادشاہ ہو یا وزیر, اس دنیا میں بسنے والا انسان ہندوستانی ہو یا پاکستانی, سعودی ہو یا ترکستانی, عراقی ہو یا ایرانی, امریکی ہو یا افغانی, روسی ہو یا چینی, مصری ہو یا جاپانی, اسرائیلی ہو یا فلسطینی, اس دنیا میں بسنے والا انسان عربی ہو یا عجمی, مشرقی ہو یا مغربی, شمالی ہو یا جنوبی, عرشی ہو یا فرشی, عجیب مستر ہو یا ماسٹر, جج ہو یا کلکٹر, حافظ ہو یا قاری, عالم ہو یا جاہل, مفتی ہو یا مستفتی, حاجی ہو یا قاضی, مدرس ہو یا مفسر, محرر ہو یا معرف, خطیب ہو یا مقرر, مؤلف ہو یا مصنف, اس دنیا میں بسنے والا انسان حنفی ہو یا حنبلی, مالکی ہو یا شافعی, نقشبندی ہو یا سہروردی, چشتی ہو یا قادری, برکاتی ہو یا اشرفی, رضوی ہو یا نظامی. اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم, عثمان غنی ہو یا مولا علی, عمر بن عبد العزیز ہو یا حسن مجتبی, حسین اعظم ہو یا شہدائے کربلا, امام اعظم ہو یا غوث اعظم, غریب نواز ہو یا بندہ نواز کے سوداراز, امام مسلم و امام بخاری ہو یا سید ظفر الدین بہاری, فرید الدین ہو یا بابا تاج الدین, قطب عالم ہو یا شاہ عالم, محدث سوری ہو یا محدث دہلوی, محدث کچوچوی یا محدث الفسانی, ہارون رشید ہو یا خواجہ عثمان ہارونی, شامینہ ہو یا یحییٰ بریلوی, شاہ اجمل ہو یا خطیب الہند سنبھلی, اورنگزیب عالمگیر ہو یا صابر کلیوی, نظام الدین اولیاء ہو یا عبد القادر بدایونی, شاہ برکت اللہ ہو یا سید سالار مسعود غازی, حاجی ملنگ ہو یا حاجی علی, صدر الشریف یا حجت الاسلام, صدر الافاضل ہو یا بختیار کاکی, مخدوم بہاری ہو یا مخدوم سمنانی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو یا امام غزالی, محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم, حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین ہو یا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری, اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے جو کوئی بھی ہو ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ضرور ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول بابا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء اکرام, فیضان اولیاء اکرام, بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا. آپ تھک گئے بھیا؟ ہاں تھک گئے, کیونکہ ایک بھائی جب سے آیا تھا تب سے کہہ رہے تھے 3 گھنٹہ بولنا ہے, ہاں کہہ رہے ختم, ہاں کمزور سمجھ رہے تھے, ہے نا جی. تو حضرات محترم میں 2 شعر نعت پڑھ دوں پھر میں اپنی جگہ لے لوں, سنا دوں؟ ہاں سنیں گے نا؟ ہاں یار, اگر جناب اختر پرواز صاحب پڑھ سکتے ہیں, نعمان کلکتوی پڑھ سکتے تو میں بھی تو پڑھ سکتا ہوں, ہے نا. ہاں تو کہیں مچل کر سبحان اللہ. بھیا تھوڑا کو دے دیجئے تو, ہے نا.
کہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے ہاں ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہاں دیکھتے ہیں آپ کی محبت. ٹھیک ہے میں چل کر سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہے نا اچھا لگ رہا ہے جی. تو کہو میں چل کر سبحان اللہ. سمت نبی پو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی پو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. فرمان ہوا پھر فضل رحمان ہوا مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جی جی ہاں ماشاء اللہ جی. اچھا لگ رہا ہے ہاں. اب پیر صاحب کی آمد ہے لیکن آپ لوگ اس طرح استقبال نہیں کر پا رہے ہیں نا.